Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start another important topic in our research methodology and biostatistics, that is statistical principles. In the statistical principles, the research and the data analysis, because we do very good research, we have very good data, but we do very poor analysis and our interpretation of results are wrong. So that is why this is essential for any researcher to know that what are the different types of data which they collect from their research and how to analyze them. That is why this lecture is essential for them. So now let us start statistical principles, research and data analysis, and now the measurement and descriptive analysis. If we talk about the data and their measurement and descriptive analysis, then we can say that we talk about the statistics. Statistics यानी जिसको हम उर्दू में शुमारियात कहते हैं, यानी statistics हम उसको कैसे descriptive analysis उसका कैसे करेंगे और measure करेंगे. Statistics क्या है? We apply statistics in for the large number of data. क्या है statistics? How we can define? Science of learning from data and a measuring, controlling and communicating uncertainty. कि मीन्स अनसर्टेनिटी को जो भी है कि एक चीज़, एक ड्रग का कोई इफेक्ट है या नहीं है, अगर है तो कितने परसेंट है, नहीं है तो कितने परसेंट नहीं है, उसको कम्युनिकेट करना, उसको कंट्रोल करना, उस डेटा से लर्न करना जो डेटा हमें रिसर्च से हासिल हुआ है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको समराइज़ करना, समराइजिंग द डेटा, then organizing the data, then presenting the data, then analyzing the data, and then interpreting the data. जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वी नीड टू समराइज इट, देन ऑर्गेनाइज इट, फिर उसके बाद हाउ टू प्रेजेंट इट, after making a proper presentation of the data, then we analyze it with appropriate statistical test. Once the statistical tests are done, then we, based upon the results of the test, we need to make conclusions and interpret about the data. और हम interpret करते हैं उसको कि ये results जो है वो research के based upon evaluation of by statistical test, इसकी interpretation ये आ रही है. If we talk about the types of statistical analysis, in types of statistical analysis we have two main types of statistical analysis, that is called descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics क्या होती है? How we can define? Summarizing, organizing and presenting function of statistics referred to as descriptive statistics. Like large number of data को summarize किया, organize किया, present किया, फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाई, लाइक मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने लगाई और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड, और दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? एनालिटिकल, इसको हम एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को. इनमें वी नीड or we do hypothesis testing or testing of hypothesis, and based upon this testing or appropriate statistical test, then we do interpretation. Means that analytical and interpretation functions collectively referred to as इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इसमें हमने जो है वो अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, मींस के स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया, उसमें नल हाइपोथेसिस बनाया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया, उस पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाए, फिर उसको जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा के बाद उसको टेबल वैल्यू और कैलकुलेट वैल्यू को कंपेयर किया कि वो एक्सेप्टेड रीजन में आ रही है, रिजेक्टेड रीजन में आ रही है, यानी हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्टेड रीजन में आ रहा है या रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है, यानी हमारा हाइपोथेसिस whether our hypothesis is accepted or rejected, जो भी सिचुएशन होगी उसकी बेस पर फिर हम वो एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर कंक्लूजन दे देंगे. दैट इज़ इंटरप्रिटेशन, कि वो क्या हुआ है, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और उसकी बेस पर जो रिसर्च का जो डेटा होगा वो हम उसकी बेस पे हम कंक्लूजन ले लेंगे कि वो ड्रग जो होगी वो क्या रिजल्ट्स दे रही है. नाउ the types of data. First we should know the basic types of data. Basically we can divide the data into qualitative data and quantitative data.
क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो इसके जो है ये बेसिक क्लासिफिकेशन है डेटा की, लेकिन स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इससे आगे बढ़कर है, दैट वी विल डिस्कस इन स्लाइड्स, इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा? कलेक्टेड इन वर्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल कि पेशेंट सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, बचा नहीं बचा, या ये कि जो है ठीक हुआ या नहीं हुआ, पेन रिलीफ और नॉट रिलीफ। Written observation or notes found in medical records are examples of qualitative data. Means patient improved, not improved. Significant improvement, improvement but not significant. तो ये जो होगा वो qualitative data कहलाएगा. But quantitative data क्या होगा? Quantitative data definitely in the form of numbers होगा. Means collected as numerical or countable information. ऐसी होगी जो numbers में या countable information होगी. Like age, weight, blood pressure are examples of quantitative data. Like for example blood pressure की हम example ले लेते हैं, या weight की हम example ले लेते हैं। अब एक ड्रग चेक कर रहे हैं वेट, जो वेट रिडक्शन करती है, तो ड्रग देने से पहले वेट कितना था और ड्रग देने के बाद कितने केजी वेट कम हुआ, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा कहलाएगा। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद कितने mmHg ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो कितने mmHg, यानी लाइक फॉर एग्जांपल 10 mmHg या 20 mmHg या 15 mmHg, ये क्वांटिटेटिव वैल्यू है या क्वांटिटेटिव डेटा है। तो ये बेसिक टाइप ऑफ डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा में वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, और क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू discrete or categorical data या कि discrete और categorical variable, for example few possible values, और continuous variable, for example infinite number of values. So quantitative data को हम discrete data या categorical data में भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, या उनको हम variable कह सकते हैं, जबकि continuous variable में भी, यानी इनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या होंगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होगा हमारे पास? नॉमिनल डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर है यस या नो की फॉर्म में, या जैसे सर्वाइव और नॉट सर्वाइव। इसी तरीके से जो है वो इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड, दैट टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। अगर हमें रिसर्च से इस तरह का डेटा हासिल हो रहा है, if we are obtaining such type of data, then we call it the data which we have collected is nominal data, या इसमें discrete variable है। ordinal data क्या होगा? orderly arrange होगा। for example pain scale, like for example Likert pain scale होता है। Likert pain scale में हम कैसे evaluate करते हैं या measure करते हैं? हम इस तरह से करते हैं कि like for example Likert pain scale में हमने लिखा, उसको स्केल को डिफाइन कर दिया 1 से लेके 7 तक। 1 means no improvement in pain एंड 7 मीन्स कंप्लीट पेन रिलीफ, और 1 से लेके 7 तक मीन्स 1 से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पेन रिलीफ की कैटेगरी बढ़ती चली जाएगी। तो हम उसकी बेस पर, पेन स्केल की बेस पर, या इसी तरह का कोई जो है वो स्केल बना के ऑर्डरली अरेंज करके 1 से लेके 7 तक या 1 से लेके 10 तक जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डिनल फॉर्म में डेटा, वो जो है ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। और ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल है या डिस्क्रीट डेटा की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जैसे ये ऑर्डिनल डेटा वर्डिंग की फॉर्म में भी होता है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में अगर जाके आपने कभी कोई लंच या डिनर किया, उसके बाद वो आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। उसमें वो आपसे पूछते हैं कि हमारी जो फूड का जो टेस्ट जो था वो आपको कैसा लगा, पुअर, फेयर, फेयरली गुड, गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट, इस तरह से जो है, यानी ऑर्डिनल फॉर्म में एक सर्टेन ऑर्डर में चल रहा है। तो इस तरह का जो जितने भी जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो ऑर्डिनल डेटा कहलाते हैं। तो रिसर्च में भी इस तरह से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो ऑर्डिनल डेटा कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से नाउ टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। द कंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस डेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू इंटरवल डेटा और रेशो डेटा। मीन्स कंटिन्यूस वेरिएबल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, या कंटिन्यूस डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है इंटरवल डेटा में। ये भी क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप है, या रेशो डेटा में। इंटरवल डेटा फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर इंटरवल डेटा किस तरह से है, या ये इंटरवल डेटा हम कहते इसलिए हैं इसको बिकॉज दिस टाइप ऑफ डेटा विल बी इंटरप्रेटेड ग्लोबली इन ए सेम वे। यानी फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का टेम्परेचर 98.6 है
और वो बढ़ के 99.6 हो जाता है। तो कितना बीच में गैप आया? 1 डिग्री का। तो अब चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, हर जगह यही इंटरप्रिटेशन आएगी कि 1 डिग्री बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंटरवल डेटा। इसमें पेशेंट का वेट भी आ सकता है। ठीक है, वेट हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो है वेट जो है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वेट हम यहाँ पे नहीं लेते क्योंकि वेट जो है वो आमतौर पे पीएमआई के साथ कैलकुलेट होता है, वेट एंड हाइट एक्सेट्रा। तो वो रेशो डेटा की फॉर्म में इसलिए हम लेते हैं। एज है पेशेंट की। अच्छा, जैसे ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन mmHg, दैट इज इंटरवल डेटा। कि अगर 140 mmHg से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होकर 130 हो गया तो 10 mmHg का गैप आया, यानी इंटरवल आया। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंटरवल डेटा। रेशियो डेटा एज, वेट या हाइट या जो परसेंटेज की फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें रेशो होता है। देखिए, परसेंटेज भी तो रेशो है ना, कि एक वैल्यू ऊपर होती है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है। तो हर वो डेटा जो कि रेशो फॉर्म में होता है, दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस वेरिएबल। तो उसमें एज, वेट, हाइट वगैरह को हम शामिल कर सकते हैं अगर वो रेशो की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है किसी भी किस्म की। Now, levels of measurement. Levels of measurement. Levels of measurement. Either the data is discrete or continuous. Examples. Possible mathematical observation क्या हो सकती है? Levels of measurement में nominal data. Nominal data is a discrete data. हम ये अभी देख चुके हैं. We have already seen in previous slides. Example, male, female. Nominal मैंने कहा था 2 ऑप्शन होंगे. Race like white, Asian, Caucasians, black, चाइनीज़ या यस या नो। और पॉसिबल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, काउंट्स यानी फ्रीक्वेंसी है। तो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि दे आर इन सर्टेन ऑर्डरली फैशन, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रीट डेटा। ये भी डिस्क्रीट डेटा की एग्जाम्पल है। लाइकर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन या लाइकर्ट पेन स्केल जैसे होते हैं, उस तरह के वही है कि जैसे 1 से 7 तक है, 0 से 7 तक है, 1 से 10 तक है, इस तरह के। काउंट्स होगा, मीडियन होगा, परसेंटाइल फॉर्म में होगा, नंबर ऑफ काउंट, मीडियन इसका क्या आ रहा है, यानी मीडियन डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। परसेंटाइल फॉर्म में, नॉट परसेंटेज। परसेंटाइल क्या होती है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। अच्छा, इंटरवल डेटा जैसे मैं बता चुका हूँ, दिस इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस डेटा। Interval data, continuous data like body temperature in Fahrenheit, Celsius, same as ordinal data but plus addition, subtraction, mean, standard deviation, यहाँ पर ये भी आ सकता है। Ratio data, continuous data, age, weight, height and income, same as interval data plus ratios के साथ होगा ये। तो ये जो होगा डेटा जो होगा वो यहाँ पर ये भी continuous data की टाइप है। Anyway, the important thing is that whether the data is continuous इंटरवल और कंटिन्यूस रेशो, इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो दोनों के कॉमन है। इससे इसलिए कि अगर वो डेटा बस कंटिन्यूस है, अब इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इंटरवल डेटा है या रेशो डेटा है, क्योंकि इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगेंगे वो एक ही लगेंगे। नाउ वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। कोई भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स होंगे, दैट दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? वैल्यूज दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल से इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डोज ऑफ ड्रग। तो डोज ऑफ ड्रग आप 50 मिलीग्राम दे रहे हैं, 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है टोटली, आप कुछ भी दे सकते हैं। और ड्रग इट सेल्फ इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप ड्रग 1 दे रहे हैं, ड्रग 2 दे रहे हैं, ड्रग 3 दे रहे हैं, तो ये जो है वो आपके हाथ में है, आपकी मर्जी जो जी चाहे करें। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द वैल्यूज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल टेक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा डोज देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, कम डोज देंगे तो कम इफेक्ट आएगा। तो या ये कि ज़्यादा ड्रग देंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कम ड्रग देंगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो जो इस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है वो उसकी वजह से जो बॉडी में चेंज आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वही प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
कि ड्रग की डोज ज़्यादा दी तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आया और कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ड्रग की डोज कम दी तो कंसंट्रेशन भी कम हो गई और रिस्पॉन्स भी कम हो गया। तो ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्रिज्यूम टू इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक एज, रेस, जेंडर आर कंट्रोल वेरिएबल्स। यानी कंट्रोल वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो है जो रिलेशनशिप है उसको वीक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं और इनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोज ऑफ ड्रग है और डिपेंडेंट वेरिएबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। आपने डोज ज़्यादा दी, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, डोज कम हो गई तो कंसंट्रेशन कम हो गई। बट ये कुछ पेशेंट इसमें ऐसे आ गए जो कि उसी ड्रग के फास्ट मेटाबोलाइज़र है। अब वो फास्ट मेटाबोलाइज़र होंगे तो जब आप डोज ज़्यादा देंगे तो फिर उस हिसाब से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी उन पेशेंट में जो फास्ट मेटाबोलाइजर है, बल्कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन लोअर देन एंटिसिपेटेड होगी क्योंकि वो उस ड्रग के फास्ट मेटाबोलाइजर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फास्ट मेटाबोलाइजर वाला जो वेरिएबल है ये इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा है। यही लिखा है कि प्रिज्यूम टू इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको चेंज करेगा। तो उस वजह से जो है वो ये जो है फैक्टर जो होगा काउंट हो सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल वेरिएबल को भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एज आती है, रेस आता है, जेंडर आता है और यही जैसे मैंने फास्ट मेटाबोलाइजर, स्लो मेटाबोलाइजर पेशेंट्स ये आते हैं, तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और यही वजह होती है कि जब हम कोई स्टडी करने जा रहे होते हैं तो फिर हम उस स्टडी में कोशिश ये करते हैं कि जो पेशेंट्स एनरोल करें, यानी उसमें जो इंक्लूड करें पेशेंट, वो ऐसे हों जिनके वेरिएबल ऐसे ना हों, जो ऐसे वेरिएबल ना हो, यानी उनमें कंट्रोल वेरिएबल्स ऐसे ना हो जो ड्रग के जो है इफ़ेक्ट को, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को पर डाउट क्रिएट कर दें कि पता नहीं ये इस ड्रग का रिस्पॉन्स है भी या नहीं है, और इसमें जो है वो किसी किस्म का कंफाउंडर क्रिएट करते हैं, यानी डाउट्स क्रिएट करते हैं। तो दैट इज़ वाई वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन शुड बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Now, measure of central tendency. What is measure of central tendency? Central tendency or central location are used to provide information about the center or typical value of a set of numbers. कि जो डेटा है उसका सेंट्रल वैल्यू क्या है, उसकी टिपिकल वैल्यू ऑफ सेट क्या है, किस तरह से है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करें। 3 कॉमन मेथड्स फॉर मेजरिंग सेंट्रल लोकेशन। आमतौर पे सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मीन, हम एवरेज और मिडिल कैलकुलेटेड वैल्यू, मीन ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। मीडियन भी जो है सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को जाहिर करती है। ये क्या है? लिस्टिंग द वैल्यू इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट, यानी पहले जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर उसको बिल्कुल मिडिल से डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियन को हम इस वजह से भी कहते हैं कि डिवीजन ऑफ डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मॉड क्या है? मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू, यानी डेटा में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो उसको हम कहते हैं मॉड। एग्जाम्पल्स हम अभी इसकी देख लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हेयर, मीन, मीडियन एंड मॉड, पेशेंट एज एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे ये दिस इज ओरिजिनल डेटा है। पेशेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 पेशेंट है हमारे पे, ये इनकी एज है 20 ईयर्स, 38 ईयर्स, 42, 20, 20, 42, 68। अच्छा, फ्रीक्वेंसी टेबल, हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल लिया तो हमने ये देखा कि जो है 20 जो है इसमें 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 42 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, 38 जो है इसमें 1 टाइम है, 51 1 टाइम है और 68 भी 1 टाइम है। तो अब हम इसकी बेस पर ये कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर एंड वैल्यू। मॉड जो आया वो 20 आ गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इस डेटा में क्या है 20, तो ये मॉड हो गया। हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जब डिवाइड किया तो मीडियन बन रहा है 40 से, तो हमने ये कहा कि मीडियन है इसका 40, और फिर जब इसका मीन निकाला या एवरेज निकाला तो दिस इज 37.63, तो ये इसका मीन आ गया। तो मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी डेटा हमारा कितना डिस्पर्स है या कितना बिखरा हुआ है। डिस्क्राइब हाउ डेटा आर स्प्रेड एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ऑब्जर्वेशन। जो हमारा डेटा है वो कितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी है उसमें और कितना स्प्रेड हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए, डिस्पर्जन के लिए भी हमारे पास सेवरल टेक्निक्स हैं। स्प्रेड ऑफ डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, हमारे पास स्प्रेड ऑफ डेटा डिस्क्राइब करने के भी मेथड्स हैं। दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल रेंज, डेटा की रेंज क्या है, या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसको हम परसेंटाइल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए भी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, RSD, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, इस फॉर्म में भी। एंड स्क्यूनेस ऑफ डेटा, इस फॉर्म में भी हम जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेंज। रेंज इज ए डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ले लें, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। लाइक फॉर एग्जांपल एज ऑफ 8 पेशेंट्स आर, वही हमने पेशेंट्स ले लिए 20, 38, 42, 20, 20, 42 एंड 51। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 68 और मिनिमम वैल्यू है 20। तो मैक्स माइनस मिन, यानी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन थी माइनस मिनिमम, तो रेंज आ गई हमारे पास 48। तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेटा जो है वो 48 में जो है वो के दरमियान में वेरी कर रहा है, यानी ये स्प्रेड कर रहा है। इंटर क्वार्टाइल रेशो और IQR, क्वार्टाइल डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएबल इनटू 4 इक्वल सेक्शंस। किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी फर्स्ट 25%, सेकेंड 25%, थर्ड 25%, फोर्थ 25%, तो उसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रिलेशनशिप या इंटर क्वार्टाइल रेशोज। फर्स्ट क्वार्टर इज एनालॉगस टू द फर्स्ट 25% क्वार्टाइल, तो पहले 25% में कितनी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर टू सेकेंड क्वार्टाइल 50%, थर्ड क्वार्टर 75% एंड फोर्थ क्वार्टर विल मेक 100%, यानी टोटल 25, 25, 50, फिर 25, 75 और फिर 25, 100। तो इस तरीके से होता है ये। दिस इज द एग्जाम्पल, IQR एग्जाम्पल। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, 76 से 100, 51 से 75, 26 से 50, 1 से 25। तो हमने इसको देखा कि वो बच्चे जिन्होंने, वो स्टूडेंट जिन्होंने 76 से 100 लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 जिन्होंने इतने मार्क्स के दरमियान में लिए हैं, वो 20 स्टूडेंट्स हैं। ये टॉप 25, यानी परसेंटाइल वाइज इसको टॉप 25 ग्रुप कहा जाएगा। द अनदर ग्रुप of 35 students, they have obtained marks from 51 to 75. ये सेकेंड 25% है, सेकेंड परसेंटाइल है या सेकेंड क्वार्टाइल है। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 26 से 50 मार्क्स लिए और ये थर्ड 25% पे थर्ड ग्रुप में शामिल है, यानी थर्ड क्वार्टाइल में शामिल है। और 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेकर 25 मार्क्स हासिल किए हैं, ये 15 स्टूडेंट्स हैं और ये फोर्थ ग्रुप कहलाएगा, यानी फाइनल परसेंटाइल या फाइनल क्वार्टाइल कहलाएगा। तो इस तरह से भी हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस क्या है, दरअसल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। शो हाउ फार द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल लाई फ्रॉम द मीन, यानी जो मीन है, जो एवरेज है, उससे कितना दूर तक जो है वो वैल्यूज जा रही हैं हमारे डेटा में। तो this has been shown by variance or standard deviation, and it is represented by sigma square and mathematically defined as sigma square is equal to 1 upon n summation of xi minus mean का स्क्वायर, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस मीन की वैल्यू का स्क्वायर, इन तमाम का समेशन ले लिया टोटल डेटा में, 1 अपॉन n ये जो है वो इसको कैलकुलेट किया तो, और इसका स्क्वायर जब ले लिया तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसी का अगर अंडर रूट ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसका रूट ले लिया तो नाउ दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर के बजाय सिग्मा, और ये वैल्यू जो है वो अंडर रूट में ले ली गई है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, या हम इसको, क्योंकि रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन n समेशन सब एक xi माइनस मीन की पावर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के बाद फिर पावर हो गई 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2।
तो जो लोग मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं दे नो इट वेरी वेल कि अगर हम ये नहीं लगाना चाह रहे तो फिर हम इसको लेकिन अंडर रूट लेना चाह रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये अंडर रूट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होगा वो वेरिएंस होगा, या वेरिएंस का जो अंडर रूट होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ fraction or the percentage. Like for example, mathematically defined as coefficient of variation or RSD कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। और जब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो यही वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा डेटा कितने परसेंट जो है वो वेरी कर रहा है, यानी वेरिएशन उसमें कितने परसेंट है। तो डेटा की वेरिएशन जितनी परसेंटेज कम होगी तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना परसेंटेज ये बढ़ती चली जाएगी इसका मतलब ये होगा कि उसमें वेरिएशन डेटा में बहुत ज़्यादा है और उसमें एक्यूरेसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। Skewness of data. This is another way. Skewness indicate that the data are not evenly distributed around the mean. यानी मीन से मीन के दोनों तरफ जो डेटा या मीडियन के दोनों तरफ जो डेटा आपने डिवाइड किया वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इक्वल डिवाइड नहीं हो रहा। मोर ऑफ द डेटा आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आइदर साइड और लेफ्ट साइड ऑफ मीन, तो फिर जो है हम उसको कहेंगे कि डेटा स्क्यूड हुआ है किसी पर्टिकुलर साइड पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। नेगेटिवली स्क्यूड डेटा को हम ये कहेंगे व्हेन द मीन इज लेसर देन द मीडियन एंड मॉड, देन दिस टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस। इफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर हेयर मीन्स दैट मीन के दोनों तरफ डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड देयर इज नो स्क्यूनेस in the data. And similarly, if mean is greater than median and mode, यानी mean यहाँ पर आ रहा है, तो this type of data is called positively skewed. और ये भी दो मीन से, देखिए यहाँ पर डेटा कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो ये और मीन क्योंकि ये मीडियन और मॉड से ज़्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मीन से। और यहाँ पर मीन इज से यहाँ पर डेटा कम है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे मीडियन और मॉड यहाँ पे आ रहे हैं, ग्रेटर वैल्यू में आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों डेटा है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, एंड द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट्स ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दोनों तरफ एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, बिल्कुल एक जैसा ये डेटा नज़र आ रहा है। Now next is organizing the data. How to organize the data? Descriptive statistics like measure of central tendency and dispersion are useful tool for explaining the data. हम चाहे central tendency calculate कर रहे हैं like mean, median, mode, या dispersion calculate कर रहे हैं range, interquartile ratio, standard deviation, relative standard deviation, coefficient of variation, इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें explain कर रहे होते हैं। Like for example, mean age of the patient in large group of patients, mean age of diagnosis of hypertension, mean age of diagnosis of cancer, तो ये हमें डेटा को explain करता है। Visual representation of data are powerful demonstration aids when used effectively. Now another the thing is that how you represent this data. आप यही mean, median, mode कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्योंकि जितने बेहतर अंदाज में आप इसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही इसकी अंडरस्टैंडिंग और जो पिकिंग होगी जो ऑडियंस के लिए वो उतनी ही अच्छी होगी। How you can demonstrate or how you can present this data. Visual presentation data can be categorized as, आप कैसे presentation कर सकते हैं इस डेटा की? टेबल्स की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स हैं जिस तरह से आप इसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इस डेटा की। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज द फ्रीक्वेंसी टेबल। टेबल की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी टेबल आप बना सकते हैं, उस तरह से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, पुअरली ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी टेबल, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेल, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 55, 35.5। व्हाट इज 55, व्हाट इज 35.5? तो फ्रीक्वेंसी ये है या ये, एक डाउट क्रिएट हो रहा है
फीमेल एफ, अब एम भी डिफाइन नहीं है, व्हाट इज एम, मेल है फीमेल है, एफ क्या है ये, यहाँ पे भी इसी तरह से लेस देन 18, 18 to 64, अबव 65 क्या है ये यहाँ पे जेंडर आ रहा है, ये एज आ रही है, और इस तरह से दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड पुअरली ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी ये जो टेबल बनाया गया है बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज करके बनाया गया, तो ऐसा टेबल जो होगा वो एक पुअर प्रेजेंटेशन होती है डेटा की। नाउ उसी डेटा को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर द टेबल इज वेल ऑर्गेनाइज, सो दिस इज वेल ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले क्या लिया, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ ली, और फ्रीक्वेंसी एंड द परसेंटेज ऑफ द पेशेंट। अब बता दिया कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर है क्या, परसेंटेज ऑफ द पेशेंट है। अब यहाँ पे एम नहीं लिखा बल्कि पूरा लिखा है मेल्स, और यहाँ लिखा मेंशन है कि ये जेंडर की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल। 55 मेल है, 100 फीमेल है, जो टोटल डेटा का 35.5% है, और फीमेल जो है 64.5% है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज इन ईयर बता दिया है कि ये जो लेस देन 18, 18 to 64 और ग्रेटर देन 65 है, ये एज है। और इसमें 3 पेशेंट यहाँ है जो कि 1.9% रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल डेटा का, 120 पेशेंट यहाँ है जो 77.4% है टोटल पेशेंट का, और 32 पेशेंट्स यहाँ है अबव 65 ईयर्स के जो कि टोटल पेशेंट्स का 20.6% है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, और ये कि वेल ऑर्गेनाइज, ये एक गुड प्रेजेंटेशन है टेबल की फॉर्म में। इसी तरीके से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी वी यूज फॉर mentioning the or explaining the data. But from here, this representation of data we will start from the next lecture. Thank you very much.